سرکاری سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف مظالم کی نئی لہر، گستاخانہ بیانات پر بھارت بھر میں جاری مظاہروں کو کچلنے کے لیے تشدد اور مسلمانوں کے گھر گرانے کا سلسلہ شروع۔ الہ آباد میں سماجی رہنما جاوید احمد کو مظاہرے کا ماسٹر مائنڈ قرار دے کر اہل خانہ سمیت گرفتار کیا گیا، پھر گھر ڈھا دیا گیا، کئی دیگر مظاہرین کے گھر بھی گرا دیے گئے۔ مظاہروں میں گرفتار افراد پر دوران قید تشدد، گزشتہ روز 16 سال کے نوجوان سمیت 2 افراد کو سیدھی گولیاں چلا کر قتل کیا گیا۔ ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ نوجوان صرف نعرے لگا رہا تھا کہ اچانک گولی لگی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کی مظالم ڈھانے والی پولیس کی پشت پناہی، کہا کارروائی ایسی ہونی چاہیے کہ سب کے لیے مثال بن جائے۔ پاکستان کی بھارت میں مسلمانوں پر پولیس تشدد کی مذمت، بڑھتے اسلاموفوبیا پر عالمی برادری سے اقدامات کا مطالبہ۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی حکومت نے مسلمان مظاہرین پر فورس کا بہیمانہ استعمال کیا، ہندوتوا پولیس اقلیتوں پر مظالم کر رہی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو تحفظ دلوانا سب کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان اور چین کی اعلیٰ فوجی قیادت کی ملاقات، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، فوجی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں ممالک نے اسٹریٹجک شراکت داری کا عزم دہرایا۔ ISPR کے مطابق تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ حکام پر مشتمل وقت کا دورہ 9 سے 12 جون کے درمیان ہوا۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قیادت کی۔ چین کی جانب سے سربراہی جنرل زانگ، وائس چیئرمین سینٹرل ملٹری کمیشن نے کی۔ کابل میں افغان طالبان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق حالیہ پیش رفت۔ بلاول بھٹو نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں اور پارلیمان میں معاملہ اٹھانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ فرحت اللہ بابر، شیری رحمان اور قمر زمان قائرہ کمیٹی میں شامل۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے اجلاس میں اتفاق کیا گیا تھا کہ تمام فیصلے پارلیمان کو اعتماد میں لے کر ہونے چاہیے۔ ملک میں پری مانسون بارشیں، محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ وسطی اور جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں آندھی متوقع، 17 جون سے بارشوں میں شدت آنے کا امکان۔ PDMA نے بلوچستان کے شمال مشرقی اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مزید بارشوں اور متوقع سیلابی ریلوں سے خبردار کر دیا۔ جون کے آخری ہفتے میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان۔ وزیر اعظم نے وفاق اور صوبوں کے اشتراک سے جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کر دی، کہا نشیبی علاقوں، زیادہ بارشوں کی زد میں آنے والے علاقوں میں انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ معمول سے کم بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح تیزی سے کم ہونے لگی۔ سندھ میں سکھر، گڈو اور کوٹری بیراجوں پر پانی کی آمد 60% تک کم ہو گئی۔ 30 جون تک ضرورت کے مطابق پانی نہ ملا تو چاول کی کاشت شدید متاثر ہونے کا خدشہ۔ ضلع نوشہرہ و فیروز میں دھان کی فصل کی کاشت پر پابندی لگا دی گئی۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ کا داسو ڈیم منصوبے کا جائزہ، چینی انجینئرز ورکرز سے کہا کہ منصوبہ 2023 میں مکمل ہونا تھا، افسوس بہت زیادہ تاخیر ہوئی۔ آئے ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار لائٹ آ نہیں رہی، بجلی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ پانی کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں، کی کریے؟ بجلی بھی نہیں ہے، بل آتا ہے 15,000۔ لوڈ شیڈنگ نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہے، پورا دن لائٹ بند ہے، کاروبار نہیں ہے، کیا کریں؟ ڈھائٹ والوں نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا ہے، 13 گھنٹے لائٹ بند ہو جاتی ہے، ہم کالج بھی نہیں جا سکتے۔ لوڈ شیڈنگ وبال جان بن گئی، شدید گرمی میں جتنی ضرورت اتنی ہی بجلی غائب۔ کراچی میں 4 سے 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، لاہور میں دورانیہ 4 گھنٹے تک آ گیا، چھوٹے شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے، دیہات میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی کی بندش۔ چھٹی کے دن بھی شارٹ فال میں کمی، اب بھی طلب کے مقابلے میں پیداوار 6000 میگا واٹ کم۔ ذرائع کے مطابق کل سے 2 پاور پلانٹس چلنے سے 2000 میگا واٹ سسٹم میں آنے، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہونے کی امید۔ مہنگائی سے
से ये रोड पे सन्नाटे लगे पड़े, कारोबार हो ही नहीं रहा है। पेट्रोल इतना महंगा है, गरीब कहाँ जाए। बारी किराया नहीं देती, जिससे 200 मांगते हैं वो कहता है 100 रुपया। हर चीज पे आग लगी हुई है, घी, चीनी, आटा। ये दही भी 140 रुपए किलो है, कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूर हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी मरता जा रहा है। महंगाई सालों और महीनों नहीं हफ्तों के हिसाब से बढ़ने लगी। खाने पीने का खर्चा बेतहाशा बढ़ गया। आवाम कहते हैं महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ी तो गुजारा कैसे होगा। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपए और कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपए तक महंगा। महंगाई बहुत ज्यादा, रोटियां नहीं महंगी है, नान इतना महंगा है, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, कितना अफोर्ड कर सकता है। 18 रुपए का नान हो गया, 12 रुपए की रोटी हो गई, हम गरीब लोग किधर जाएंगे। सस्ती कैसे देंगे, आटा सस्ता देंगे तो रोटी सस्ती मिलेगी। पैसे की बोरी इतनी महंगी कर दी है, वो पहले रेट पे दे दें, जो पहले रेट था हम 10 का 15 के देंगे। हम इस तरह नहीं कर सकते, ना बेच सकते हैं, दुकानें बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लाहौर में तनूर मालिकान ने जिले इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। नान और रोटी की कीमत बढ़ा दी। नान 18 रुपए और रोटी 12 रुपए में फरोख्त। तनूर मालिकान ने शिकवा किया कि आटा महंगा हो गया। हुकूमत पुरानी कीमत रखना चाहती है तो तनूरों को आटा भी पुराने निर्ख पर दिया जाए। जिले इंतजामिया के मुताबिक नान 15 रुपए और रोटी 10 रुपए में ही फरोख्त होगी। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा नान बाय एसोसिएशन ने रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। 15 जून से हड़ताल की धमकी। ईद कुर्बान पर मवेशियों की फराहमी में बड़ा हिस्सा डालने वाले बहावलपुर डिवीजन में लंपी वायरस का फैलाव। 9,000 जानवर मुतासर, दर्जनों हलाक हो चुके। हुक्काम के मुताबिक 2 लाख मवेशियों को लंपी वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। बहावलपुर डिवीजन में बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जानवर लाने पर पाबंदी है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बाबर 11 मिशन क्लीन स्वीप से एक कदम दूर। मेहमान टीम सीरीज का इख्तिताम फतह के साथ करने की कोशिश करेगी। मैच अब से कुछ देर बाद दोपहर 4 बजे शुरू होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि हालिया बजट में कबाइल के लिए कोई इजाफा नहीं किया गया, सिर्फ 110 अरब रुपए का बजट रखा। डेवलपमेंट की फंडिंग कम कर दी। कबाइल के लिए हुकूमत के नाकाफी इकदामात नाअहली बदनीयती जाहिर करते हैं। पीटीआई हुकूमत ने कबाइल के लिए फंडिंग 3 गुना करके 131 अरब रुपए कर दी थी। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है, लेकिन इकोनॉमी भी हमारी उतनी बढ़ी है। और आपने जब लिया था 14 ट्रिलियन का, जब पीपल्स पार्टी गई थी, और आपने उसको 25 ट्रिलियन किया था, वो कितना था? वो 80% था, वो 80% था, वो आपको याद नहीं आ रहा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन के बयान पर नून लीग और पीटीआई के रहनुमाओं में लफ्जी गोलाबारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि शौकत तरीन ने एतराफ कर ही लिया, इमरान साहब ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। ये कर्ज तारीख पाकिस्तान में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ अभी इमरान साहब ने करने हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मजमूई कर्ज $52 अरब लिया। 52 अरब में से $38 अरब नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के लिए लिए गए कर्ज की वापसी में दिए। IMF से मुआहिदा पसंद नहीं तो हुकूमत IMF बोर्ड में क्या लेने जाती है। कल पंजाब का बजट कौन पेश करेगा? सूबे के वज़ीर खजाना का नाम अब तक सामने नहीं आ सका। ज़राए के मुताबिक पंजाब का बजट उवैस लगारी पेश कर सकते हैं। महकमा खजाना पंजाब ने बजट तकरीर के पॉइंट्स उवैस लगारी को भिजवा दिए। पंजाब के 2,850 अरब रुपए के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 683 अरब से जायद, घी, चीनी, आटा पर सब्सिडी के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। तालीम के लिए 56 अरब और सेहत के लिए 173 अरब रुपए तजवीज। जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
पंजाब असेंबली में PTI और खास लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास, बजट से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का कहना है कि कल इजलास होगा या नहीं ये सवालिया निशान है। ऑपोजिशन लीडर का फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है। 2 डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर भी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए हजम का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा तजवीज। बंदोबस्ती अजला के लिए 11 खरब 9 अरब रुपए, कबायली अजला के लिए 222 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। तनख्वाहों के लिए 4 खरब 47 अरब और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 1 खरब 7 अरब रुपए रखने की तजवीज। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में आग लगने से 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें, 2 दर्जन गाड़ियां, बस और 2 रिक्शे जल गए। नजारत में केस प्रॉपर्टी और चोरी या छीनी गई गाड़ियां बरामद करके यहां रखी जाती हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। स्वात के इलाके कुकारी के पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। मरगजार के जंगलात में गुज़श्ता रोज से लगी आग अब तक न बुझाई जा सकी। रेस्क्यू के मुताबिक तेज हवा के बायस आग आबादी की तरफ बढ़ रही है। जिला खैबर के इलाके कालाखेल के पहाड़ों पर दरख्तों में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें रवाना। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही शाहजेब इम्तियाज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 25 साला शहीद सिपाही कोटली सतिया के रिहायशी थे। बाजोड़ में खारपुल के करीब पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकार जख्मी। कोटली की तहसील मीरपुर माथेलो में तालाब में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। मरने वाले बच्चों की उम्र 5 से 10 साल है। कलम, किताब और गेंद बल्ले की जगह इन हाथों में औजार क्यों हैं? मेहनत मजदूरी में झोंककर मुल्क के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों से बचपन छीन लिया गया। कानून तो बन गए, अमल दरामद कौन कराएगा? समाजी रहनुमाओं का बच्चों से मुशक्कत लेने के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम। बरतानिया में तजुर्बाती बुनियादों पर 6 माह के लिए नए मंसूबे पर अमल शुरू। 70 कंपनियों के 3000 मुलाजमीन हिस्सा बनेंगे। 4 दिन काम करने पर भी पूरी तनख्वाह मिलेगी। ट्रायल का मकसद मुलाजमीन की ज़हनी सेहत और शख्सियत में बेहतरी लाना है। कोरोना वबा के बाद से मुतादिद ममालिक में कारोबारी हफ्ते का दौरानिया कम करने का मुतालबा सामने आया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक्सॉन और दीगर ऑयल कंपनियों को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि तेल की तलाश के लिए 9000 लाइसेंस होने के बावजूद ड्रिलिंग नहीं की जा रही। नई सरमायाकारी करने के बजाय अपना ही स्टॉक वापस खरीदा जा रहा है। अमेरिका में हथियारों पर पाबंदी के लिए 400 मकामात पर मार्च और एहतजाजी मुजाहरे। हजारों अफराद की शिरकत। वाशिंगटन में हथियारों के हामी शख्स का स्टेज पर धावा। मुजाहिरीन में भगदड़ मच गई। चंद दिनों पहले टेक्सास में फायरिंग करके 19 बच्चों और 2 टीचर्स को कत्ल किया गया। रवा साल असलहे का इस्तेमाल करके 19,000 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। चीन ताइवान की अलहदगी रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। चीनी वज़ीर दिफा का अमरीका को 2 टोक पैगाम। चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत रोकने का मुतालबा। चीनी वज़ीर दिफा का बयान सिंगापुर में अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात के मौके पर सामने आया। इनसे पहले अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा था कि चीन ताइवान के खिलाफ मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इक़दामात से बाज रहे।
ครับบินฮาครับไม่ว่าเธอจะแพ้หรือชนะ पाकिस्तान की विमेन मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर अनीता करीम की थाईलैंड में शानदार कामयाबी, ऑस्ट्रेलियन हरीफ को नॉकआउट कर दिया। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली अनीता करीम दी आर्म कलेक्टर के नाम से मशहूर। हमारे मेहमान आते हैं जो गैर मुल्की, हमारा पाकिस्तानी भाई मेरे साथ पिक्चर बनाते हैं, बहुत खुश, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश और हम भी खुश हैं। वादी हुंजा की पहचान कदीम बलतत फोर्ट और बलतत फोर्ट की पहचान सलाहुद्दीन। लंबी मूछों वाले गार्ड सलाहुद्दीन का मुनफरिद अंदाज सयाहों की तवज्जो का मरकज। और मारूफ रेसलर और हॉलीवुड अदाकार ड्वेन जॉनसन की फिल्म ब्लैक एडम का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। फिल्म अब 21 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।